Okay, so let's start now. 1 minute. I'm opening my account, then we will start now. Just 1 minute more. Just a minute. I'm opening my. This is some network problem. Once they will give that all the marks. Don't worry. You will get. Have you solved all the questions? Just a minute. Where is the problem? Okay, file is opening. It's taking some problem. Okay, now it's open. So I am saying that what I will do first, I will discuss some construction of a tree, and once the binary tree we create, then I will go back and again I will talk about some theoretical concepts, and again one by one we will start implementation. Again, I am hoping that my voice is clear. If I have a problem, then let me know. I hope you all are getting voice clearly. I'm sharing my file. Just write if it is visible. I'm going on that. I'm connecting. I hope that my file is visible now. Yes, thank you. Thank you, Priyansu. And what today agenda is? Today, just binary tree implementation. First 5-10 minutes, I will discuss this part, and then we will move to the next, how to traverse on this. So some methods of traversal on binary tree in detail I will discuss. Okay. So the first part is binary tree implementation. Okay. And what we do for that purpose, we will create a class for this. So what do you mean by the class? Already so many times the class we have discussed. So in this case, now we create a class. So class for tree node. We are going to create a tree node now.
And if you remember what I discussed, that a node you have created in dual or this linked list. In doubly linked list कितने नोड होते थे? एक नोड में 3 इंफॉर्मेशन होती थी, डेटा और उसके पहले कौन है, उसके बाद में कौन है. दैट वन वाज द स्ट्रक्चर ऑफ डबली लिंक लिस्ट में. वैसे ही ट्री में हर नोड में कितनी इंफॉर्मेशन होगी, यहाँ पे भी नोड बनेगा. डबली लिंक लिस्ट में नोड प्रीवियस और नेक्स्ट थे. यहाँ पे क्या होगा, नोड पे जो डेटा है वो, और उसका लेफ्ट चाइल्ड कौन है, उसका राइट चाइल्ड कौन है. सो ये इंफॉर्मेशन वहां पे होगी. तो उसके अनुसार डेफ in it we will create self data. Okay, self dot data equal to data self. एक तो डेटा के लिए हो गया. Why this? To store information at the node. ठीक है, ये सेल्फ नहीं सेल्फ है. उसके बाद सेल्फ डॉट लेफ्ट में क्या डालेंगे? बाय डिफॉल्ट इट इज नन. नन मीन्स दिस इज बेसिकली लेफ्ट चाइल्ड ऑफ ए नोड. और सेल्फ डॉट राइट बनाएंगे. अगेन बाय डिफॉल्ट नन है, जैसे उसमें भी बाय डिफॉल्ट नन ही करते हैं डबली लिंक लिस्ट में, अगर याद करें. राइट चाइल्ड ऑफ ए नोड. तो जो नोड है ये पेरेंट हो गया, इसके 2 बच्चे हो गए, इसका स्टोरी बस. दैट्स ऑल. हो गया, नोड क्रिएशन हो गया. Then what we do next? If we have created a node, then next what we have to do in this case is creation of objects. So ऑब्जेक्ट बनाइए, मतलब नोड का एक्चुअल क्रिएशन है, वो स्केलेटन बन गया. अब सुनो क्या क्या बनाएंगे. रूट बना लो. ट्री में रूट होता है, मतलब फर्स्ट नोड को हमने रूट कर दिया और अपने क्लास को कॉल कर दिया और उसमें डेटा पास कर दिया. ये रूट नोड के लिए आर. पहले सारे नोड क्रिएट करेंगे हम, ठीक है. सो रूट नोड ए बी सी डी ई एफ, ये सारे नोड हम बना लेते हैं, 2 4 5 देखेंगे. नोड ए इक्वल टू ट्री नोड कॉल किया, यहां डाला ए. नोड बी इक्वल टू ट्री नोड बी. नोड सी इक्वल टू ट्री नोड सी. node D equal to tree node D and node, ऐसे तो कर लीजिए.
जितने नोड चाहिए आपको कर लीजिए। अब ये हो गया। देन अब हमको ट्री बनाना है। अभी तो ट्री नहीं बना है, सारे जंबल नोड बन गए, कनेक्शन नहीं दिया है। सो नाउ वी विल क्रिएट बाइनरी ट्री, मतलब लिंक करेंगे रूट के। बाय डिफॉल्ट रूट अभी जो हमने क्रिएट किया है रूट नोड, सो रूट में आर आ गया, तो आर आ गया तो डेटा में आर चला गया, दिस पॉइंट पे आर तो हो गया। बट बाय डिफॉल्ट आर के लेफ्ट में नन है और आर के राइट में नन है, क्योंकि दिस वैल्यू वी हैव नॉट डन एनीथिंग। All node has been created by default, and all the nodes root to node G, the left child and right child in this till now the creation, all are none. सभी none है by default, left and right childs are none. Now what we do, अब हम असाइनमेंट करेंगे, मीन्स रूट के लेफ्ट में एक चाइल्ड डाल दो, लेफ्ट में इक्वल टू नोड ए। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो रूट वाला ये जो कॉल था, इसके आर में डेटा तो आर हो गया था, पर ये नन था, नन की जगह नोड ए आ गया है, तो नोड ए इज नाउ द लेफ्ट ऑफ नोड आर। यू कैन असाइन इन एनी वे, रूट के राइट में नोड बी, ऐसे ही रूट का लेफ्ट राइट हो गया, बाइनरी है, इससे ज्यादा जाएंगे नहीं। अब ए और बी दोनों क्रिएट हो गए। अब ए के लेफ्ट में क्या होगा और ए के राइट में क्या होगा, नोड ए डॉट लेफ्ट इक्वल टू नोड सी and node A dot right equal to node D. A के लेफ्ट राइट हो गए, B के भी लेफ्ट राइट में कर लो। ये सारा हो गया, A to J तक का असाइनमेंट हो गया। ये जो ABC आपने किया है, इसको आप अपने पेन एंड पेपर से बना लीजिए ट्री। अभी विजुअलाइजेशन, क्योंकि अभी लेटर ऑन वी विल सी दैट, अभी one by one node we are going to print, but visualization we will see that how this one is going to visualize and how it works. Okay, so that part I will tell you. यहाँ तक हो गया, तो अब टेस्ट करते हैं। ये इसका ट्री अपने पेज पे बना लीजिए, पेन एंड पेज से मैंने बना लिया, ठीक है, आप भी बना लीजिए अपने पेन पेज से। प्रिंट करिए रूट के राइट में क्या है, जस्ट दिस वन वी आर प्रिंटिंग, जस्ट सी व्हाट यू विल गेट।
Just 1 minute. Okay, 1 minute I have missed. Yes. No. हाँ, मैं लिख रहा हूँ डाटा डेटा मिसिंग है, जैसे आई एम डूइंग दैट राइट में कुछ आएगा नहीं। एक 1 मिनट। यहाँ पे इनिट में भी 2 कॉलम नहीं था, अब यहाँ राइट के राइट में क्या है उसका डेटा चाहिए। ओके, नाउ वी विल सी। बी आ गया, ठीक है। यू माइट सबने क्रिएट किया हुआ रूट के राइट, अब एक और राइट लगा दें। रूट के राइट क्या आना चाहिए? लेट्स सी, एफ। उसके भी राइट कर दीजिए। रूट राइट उसका राइट में नन है, तो नन में है तो डेटा है ही नहीं। आपने यहाँ डेटा प्रिंट आउट किया है तो ऐसा कुछ लगाया नहीं है कि अगर नन हो जाए तो डेटा प्रिंट, डेटा में कुछ है ही नहीं इसलिए आ रहा। नन टाइप ऑब्जेक्ट है, नो एट्रीब्यूट डेटा, तो हमने डेटा को प्रिंट करने के लिए कहा, इसलिए क्योंकि उसके राइट में कोई डेटा नहीं है। द मोमेंट सेम कोड आई विल डू लाइक दिस, एफ आ जाएगा। अब राइट का लेफ्ट डॉट डेटा कर दो, यहाँ लेफ्ट कर दूं। तो करेंटली मैनुअल टेस्टिंग वी आर डूइंग, ई आ गया। तो ऑल नोड स्पेसिफिक डेटा यू आर एबल टू गेट इफ यू आर नोइंग कौन किसके लोकेशंस में है। बट दिस इज नॉट एफिशिएंट वे। ट्री को कैसे प्रिंट करें और कैसे ट्रेवर्सल करें, दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट आल्सो। You all have seen that what we did in the case of simply linked list and doubly linked list. A traversal is important. So if you are starting from A nodes, how to traverse from A node to B, B to C, C to D, like that. So in that scenario, how to traverse और ट्रेवल कैसे करेंगे? जब ट्रेवल कर लेंगे हर डेटा को तो उसको प्रिंट भी कर लेंगे। तो क्वेश्चन इज हाउ टू ट्रेवर्स, अकॉर्डिंगली ट्रेवर्स करेंगे तो सीक्वेंस बदल जाएगा, पहले कैसे जाएं। So that's the important part in traversing of nodes in a binary tree. And for that purpose now today, the 3 different approach, pre-order, in-order and post-order in detail, I will discuss now. So as I do, first detail I will talk about on using the board. Once board will be completed, then I will go to the detail, okay? So just a minute, board I am opening. In meanwhile, if I have a question, then write. Otherwise, board I am going to open. A minute, please. This is a small part, so no one have any query, I think so. So let's move on. The board part, I am stopping sharing. Going to the board. And once visible, then let me know. A minute, please. Am I audible? You write on the chat book, and I'm going to share first. So my voice is, I hope, proper. Or any change you are feeling in my voice? Any change, or you are getting proper voice?
What? No, Alok, I'm not getting now. Oh, proper voice. Okay, fine. Okay, okay. So I have opened that my board. My board is visible to everyone. My board is visible or not? Anyone can write. Okay, thank you. Thank you. Just a minute. Okay. So what I am going to discuss is binary tree traversal. What do you mean by this? Going through a tree by visiting every node one node at a time is what called as traversal. ओके ये हमारा ट्री कोई आर बना लेते हैं, जो अभी हमने आर अभी आपको दिया था वही वाला आर बनाता हूँ, जो हमने क्रिएट किया है ना अभी उसी को करता हूँ। उसके लेफ्ट में हमने दिया था ए, राइट में दिया था बी, फिर ए के लेफ्ट में सी, ए के राइट में डी, बी के लेफ्ट में ई, बी के राइट में एफ एंड एफ के लेफ्ट में। ये हमने ट्री अभी क्रिएट किया था, ले लिया। नाउ हमको ट्रेवर्स करना है, एक एक करके डेटा को रीड करना है, तो कैसे हम इसको रीड करें? द टू मेन कैटेगरी फॉर दिस, और ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर तो है नहीं कि एक से लिंक लिस्ट हो या एक जगह से स्टार्ट हुए उसके नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं, ऐसा भी नहीं कर रहे हैं। आर से शुरू करेंगे तो हम पहले ए पे आ सकते हैं और बी पे भी आ सकते हैं, किसी एक पे। ए पे आने के बाद सपोज कि ए आ गए, तो ए के आने के बाद आप सी पे भी आ सकते हैं, आप डी पे भी आ सकते हैं, या हम ए के बाद बी पे जाएं। तो कई तरीकों से हम एक वन बाय वन डेटा सेट्स को वन नोड से दूसरे पे जा सकते हैं। तो फॉर्मल जो मेन कैटेगरी आर टू ट्रेवर्स दैट, देयर आर two main category. Two main categories. One is BFS, which is also known as breadth first search. What is the meaning of breadth? Anyone? What is the meaning of breadth? You write in the chat box, then I will explain. कौन सा स्ट्रक्चर मैंने बना लिया? कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, जो हमने वहां असाइनमेंट किया था उसको हमने पिक्चर के फॉर्म में लिखा है। यही तो वहां जो आपने डेटा स्ट्रक्चर वहां बनाया था अभी कोलैब पे, वो सेम यही था। उसको लेफ्ट और राइट ड्रॉ करोगे हाथ से तो यही आएगा। कोलैब में ड्राइंग करना वो बाद में बताएंगे, ग्राफिक्स पार्ट दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन।
ओके अरे मैंने पूछा ब्रेथ का मतलब क्या है? यू राइट, नो वन इज रिप्लाइंग. विड्थ. ब्रेथ मीन डिस्टेंस. डिस्टेंस बिटवीन. अमन, डिस्टेंस बिटवीन. लेंथ क्या है? किसकी लेंथ है? ब्रेथ क्या है? Anyone else also want to write it? Distance between two opposing node. आप नोड के टर्म में अच्छा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट. डिक्शनरी मीनिंग क्या है ब्रेथ की? ढूंढा? वही लिख दो. Why you are all are defining everything in the terms of node? I am asking कि ब्रेथ की डेफिनेशन क्या है? अरे हाँ, सुकेश ने बताया है विड्थ. I am not talking about anyone talking about the terms of this node. General definition. Someone are saying width, that is acceptable. Width. Side. Okay. Side by side you can say. So in breadth first traversal, that's what we will do that. Am I audible? Yes, it hope so. So let's go on the board. ब्रेथ में क्या करेंगे? अब थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं. लेवल हमने बताया था, ये है फर्स्ट लेवल पे है नोड. इनका लेवल 1 है, इनका लेवल 1 है. एक ही लेवल पे है या एक ही ब्रेथ पे है? तो ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल का मतलब क्या है? लेट्स गो बैक कि हम पहले इस लेवल पे ट्रेवर्सल करेंगे. लेवल 1 कितने एलिमेंट है? आर. आर को रीड कर लिया बीएफएस में. आर. नेक्स्ट कोई एलिमेंट और है? नहीं. नेक्स्ट चले जाएंगे यहां लेवल 2. इसको पूरी ब्रेथ को एग्जॉस्ट करेंगे. मतलब पहले या लेफ्ट वाइट जब जा रहे हैं तो पहले ए को कर लेंगे, फिर ए के बाद हम बी पे जाएंगे. तो ये जो है बीएफएस है, ब्रेथ फर्स्ट. पूरी ब्रेथ को एग्जॉस्ट कर लेंगे. इस लेवल पे आ गए सारा. आर, ए, बी और कोई नहीं है, तब हम यहां चले गए. सी है, इस लेवल पे आ गए. फिर सी, सी, डी, ई, एफ. फिर लेवल 4 पे आएंगे. जी. दिस इज BFS, breadth first search. Many versions and something comes out. All the nodes at the same level first visited. So level पे जितने हैं उनको visit करेंगे. Then we will go to the next level of tree. Then go to the next level of tree. So sideway direction में जिस लेवल पे है साइड में जाके हम सारा ट्रेवर्सल करेंगे फर्स्ट. This is breadth first search. Okay. Though we will not go in detail of this. Okay, any question on this? Then the next one I will discuss. Anyone have any query or it's understandable? Any query? I think no query. Okay, no one have any query. It's a trivial one. So implementation part I will not discuss this much too much on this. The next one is where detail we will go. DFS meaning is
depth first search. And okay, what is the literal meaning, dictionary meaning of depth? And just write dictionary meaning of depth. You write on the chat box. I am coming. I am seeing what you. Deep and height. Height. Depth means height. कोई कुआं है उसकी डेप्थ नापते हैं तो हाइट है. माउंटेन की डेप्थ होती है या हाइट होती है? और तालाब की डेप्थ होती है कि हाइट? डीप एंड हाइट बोथ आर सेम. टॉप टू बॉटम साइड यू गो. डेप्थ गहराई होता है. कुएं की गहराई होती है, कुएं की हाइट होती है क्या? कभी कुएं की या तालाब की या नदी की हाइट पूछते हैं किसकी हाइट कितनी है? देन यू लुक बिलो ए लेवल डाउन जाना होता है. माउंटेन जनरली क्या होता है, हम जहां रहते हैं वहां से रिस्पेक्ट में देखते हैं. सो माउंटेन की हाइट हम बात करते हैं. माउंटेन की डेप्थ किसी ने कभी सुना है? विल वी टॉक? नो. सो दैट ओके. अब सबको अगर डेफिनेशन क्लियर है कि इसका मतलब क्या है तो सर्च में भी क्लियर होगा. डेप्थ फर्स्ट, गहराई पहले करेंगे तब हम जाएंगे आगे. देखिए व्हाट इज द मीनिंग. Okay, हम बुझ गए. So you all are now comfortable with the depth. Just see what happened in the depth first search. पहले वही वाला ट्री बना लेता हूँ जो ऊपर बनाया था, फिर से बनाता हूँ एक बार. जस्ट ए मिनट. R अब करेंगे डेप्थ. डेप्थ मतलब ये है, यहां से अगर स्टार्ट करेंगे तो कलर इसका भी थोड़ा बदल दूं यार. तो यहां से भी स्टार्ट करेंगे तो डेप्थ मतलब हम ऐसे जहां भी जाएंगे ऐसे जाएंगे नीचे. तो अगर यहां से स्टार्ट किए आर से, इसके नीचे जाना है, कैसे नीचे जाएंगे? सो आर से स्टार्ट करके नीचे जाने के लिए या गहराई जाने के लिए या तो ए या तो बी, कोई बात नहीं, वो भी अलग तरीका होगा. गहराई में अगर मान लो ए पे आ गए, ए के बाद कैसे जाएंगे? तो डेप्थ को पहले सर्च करेंगे, ब्रेथ को नहीं. ब्रेथ में क्या होता था? आर, इसी को रीड कर लिया. अब इसको डेप्थ में पहले रीड करेंगे, मतलब सबसे नीचे आ गए. यहाँ नीचे ऊंचे कुछ नहीं है तो यहीं रुक गए, पहले इसको रीड किए तो डेप्थ खत्म. इस डेप्थ को रीड कर लिए तो यहां से हम यहां नहीं जाएंगे, यहां से हम यहां जाएं, यहां से यहां जाएं, यहां से यहां जाएं. डेप्थ में क्या होगा, पहले सबसे नीचे लिफ्ट पे जाएंगे, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि हम यहां से यहां जाएं, यहां से यहां जाएं. तो बहुत सारे तरीके होंगे डेप्थ में भी ट्रेवर्सल करेंगे. ये डेप्थ का मतलब है कि पहले हम उसमें तो हम लेवल पे करते थे, इसमें गहराई में जाएंगे. कैसे जाएंगे वो देखेंगे. अलग अलग तरीके से गहराई में जा सकते हैं. गहराई में पहुंच गए मतलब लीफ नोड पे पहुंच गए, फिर ये रीडिंग हो गई, इसके बाद नेक्स्ट डिसाइड करेंगे तो कौन सा होगा, ये वाला होगा फिर या ये वाला होगा. अलग अलग तरीके से, बहुत तरीके से हम ट्रेवर्सल कर सकते हैं. हर समय क्वेश्चन आएगा कि इस पे जाऊं या इस पे जाऊं. तो तीन जो मेन कैटेगरी होगा इस डेप्थ फर्स्ट सर्च की, थ्री मेन कैटेगरी हम जो डिस्कस करेंगे अब. थ्री different types of DFS
traversals. One, pre-order, A कर दीजिए, B in order, and C post order. So one by one, pre, in, and post. Now I will discuss the philosophy, how it works, the algorithmic steps of pre-order. Then we will go to the programming part. We will do the programming again, in order, again programming, and that way we will move on. So this is the two main broader category for this age: pre-order, breadth and depth first search, and within the depth we will talk about pre-order search. Okay. Any question? 1 minute time, then I will start. If anyone have any question, write in the chat box till now. Otherwise, I am going to discuss pre-order. No one have any query? Okay. So let's pre-order. सेम ट्री लेंगे, इसको जरा क्लीन कर लूं मैं. मैं फिर से इसको बना लेता हूं. R A B C D E F G. And what I am discussing now, the first one we are going to start is pre-order traversal. And the idea is, the philosophy is, पहले root, फिर left, फिर right. This works on this phenomena. मतलब पहले रूट को ट्रेवर्स करेंगे, फिर राइट को करेंगे, पहले रूट को करेंगे, फिर राइट को करेंगे, पहले रूट को करेंगे, फिर राइट को करेंगे, रूट राइट. सो बिफोर गोइंग टू प्रोग्राम राइटिंग और ऑल, एक छोटा सा एग्जांपल में लेता हूं, तब मैं
इसको करेंगे, इस एक्चुअल ट्री को भी एक एग्जांपल है। मैं छोटा सा लेता हूं, एक छोटा नोड है ए बी और ये सी है। ये क्या हो गया इसमें, ये रूट हो गया, ये क्या हो गया इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया इसी रूट का, ये क्या हो गया राइट हो गया। सो व्हाट इट सेज दैट, पहले रूट को पढ़िए, तो रूट में पड़ गया तो ए, फिर जाइए लेफ्ट में तो बी, फिर जाइए राइट में तो सी। प्री ऑर्डर में ये सीक्वेंस होगा, पहले ए रूट लेफ्ट एंड राइट। हम प्रोग्रामिंग क्या करेंगे देखिए, बिफोर गोइंग टू प्रोग्राम और इसको लिंक कैसे सिंटेक्स करते हैं, तो एक मैं अगर एक फंक्शन लिखता हूं, प्री ऑर्डर फंक्शन है जिसमें रूट को पास कर दो, तो पहला क्या देखेगा कि पहले देखो यार ये रूट नल है क्या, फर्स्ट स्टेप पर इफ रूट इज नन, कुछ है ही नहीं, देन रिटर्न की खाली है भैया, ये कुछ प्रिंट नहीं होगा। नहीं तो क्या करेगा, अगर वो खाली नहीं है तो प्रोसेस रूट मतलब प्रिंट करा देंगे ना, प्रोसेस रूट मीन्स यहां ये नहीं है, मीन्स प्रोसेस का मतलब इसको प्रिंट कर लो या जो भी काम करना, प्रिंट द रूट। अभी ट्रेवर्सल है प्रिंट रूट डेटा, क्योंकि पहले हमें इसी को रूट को प्रिंट करना है। बहुत सारे कहते हैं क्लियरली नहीं लिखा है, तो इसको मैं रीड करके फिर से क्लियरली लिख देता हूँ, कोई कंफ्यूजन न रहे आपको। प्रोसेस रूट मतलब ए को रीड कर दिया आपने, प्रोसेस रूट किया, सीक्वेंस लिख रहा हूँ अभी, प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूँ, जिससे कि आप समझ लो, फिर समझ जाओगे तो फिर तो होता ही रहेगा। क्या होगा फिर, ए को पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, लेफ्ट में जाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्री ऑर्डर, इसी फंक्शन को फिर से कॉल कर देंगे। रिकर्सिव फंक्शन में क्या होता है, फिर से कॉल कर लिया, अब इसमें रूट था, हम इसको पास करेंगे, मतलब रूट डॉट लेफ्ट। ये रूट डॉट लेफ्ट क्या करेगा, रूट डॉट लेफ्ट मीन्स हम बी पे आ गए। अब बी पे रिकर्सिवली कॉल करेंगे तो फंक्शन क्या करेगा, फिर चेक करेगा, क्या चेक करेगा, प्री ऑर्डर इसको करेगा, इफ रूट, रूट मीन्स रूट डॉट लेफ्ट की बात हो रही है। जैसे ही इसको कॉल करेंगे आप, इसके लेफ्ट पे चेक करेगा कि ये डेटा इम्प्टी है क्या, नहीं है, इम्प्टी नहीं है तो इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है, इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहीं तक का कोड लगाएं और ये जो पुराना वाला देखिए, मतलब जो अदर एग्जाम्पल था उसको देखिए जरा, इसी पे हम करेंगे सिक्वेंशियली, बट ब्लैक नोड में इस ब्लैक वाले एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं, और रेड नोड दिस एग्जाम्पल को करेंगे। ऐसे ही करेंगे, अगर रूट को स्टार्ट करेंगे तो क्या करेगा, पहले रूट को हम प्रिंट कर दिए इसी एल्गोरिथम पे जो मैं लिख रहा हूं अभी। इसके बाद क्या होगा, इसके लेफ्ट वाले में, इसके लेफ्ट में क्या है ए, इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे प्री ऑर्डर डॉट रूटले, तो हम बेसिकली डॉट ए पे पहुंच गए। अब ये एल्गोरिथम, ये चूंकि रिकर्सन है तो फिर से सारा होगा, इफ रूट इज नन, क्या ये नन है, हाँ तो रिटर्न हो गए वैल्यू, नहीं ये नन नहीं है तो क्या करेगा, नन नहीं है तो इस डेटा को प्रिंट करेगा, मतलब ए को प्रिंट कर देगा। फिर क्या करेगा, फिर ए से इसके लेफ्ट को पास कर देगा, इसका लेफ्ट मतलब सी, वो यहां पे आ जाएगा।
अब उसका लेफ्ट सी पे पहुंच गए तो फिर से जाके चेक करेगा क्या सी एम्प्टी है, नहीं सी एम्प्टी नहीं है तो सी का डेटा प्रिंट। अब क्या करेगा, सी का लेफ्ट इसको असाइन होगा, इस वाले को, जैसे ही सी का लेफ्ट असाइन होगा और दोबारा ये चेक होगा तो सी का लेफ्ट नन है तो ये नन हो जाएगा और यही रुक जाएगा। आर ए और सी प्रिंट हो गए, इसके बाद यहाँ का एल्गोरिथम काम नहीं करेगा। और हम कहां तक पहुंच गए हैं, हम पहुंच गए हैं अभी हम लोग वी आर नाउ आवर रूट इज बेसिकली, हम सी तक पहुंचे हैं यहाँ तक। अगर इसको एग्जॉस्ट कर दें तो हम सी तक पहुंच गए हैं जिसका लेफ्ट नन है, तो आर ए सी प्रिंट हो गया और हम यहाँ पहुंच कर रुके हुए हैं। बट ये राइट वाला ट्रेवर्सल नहीं हुआ है अभी। सो व्हाट वी डू नाउ टू ट्रेवर्सल द राइटर पार्ट, ये रेड वाले छोटे से एल्गोरिथम डेटा में और इस दोनों में देखना है। इससे ए और बी तो प्रिंट हो गया रेड वाले में, पर सी प्रिंट नहीं हुआ है। तो अभी होगा क्या, इसको और थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, और सेम पार्ट पे एक और पार्ट अब जो करेंगे और एक स्टेप बेसिकली ऐड कर देंगे, एंड दैट इज ये जब सारा कुछ एग्जॉस्ट हो गया लेफ्ट वाला तो हो जाएगा प्री ऑर्डर रूट डॉट राइट। और क्या प्रिंट करेगा, रूट डॉट राइट मीन्स आपका रूट सी हो चुका है, इस सारे मूवमेंट से सी हो चुका है, ठीक है ना। तो इस रेड वाले में क्या करेगा, ए बी के बाद बी एज ए रूट हो गया तो सी को प्रिंट कर देगा। अब ब्लैक वाले में क्या होगा, अब रेड वाला तो आसान है कि ए बी सी हो गया, ब्लैक वाले में क्या होगा, आउटपुट लिखना शुरू कीजिए। हम यहां सी से पहुंचे थे, अब सी के राइट भी नल है, सी के राइट नल है, तो क्या करेगा, ठीक है। लॉजिकली क्या होना चाहिए, तब प्रोग्राम को समझने की कोशिश कीजिए। आर से ए से सी, रूट रूट रूट। अब यहां पहुंचे, इसको हमने बनाया रूट, ये ए प्रिंट हो गया, सी प्रिंट हो गया इस ब्लॉक के, अब इसका राइट प्रिंट होगा, मतलब ये डी आ जाएगा। रूट लेफ्ट राइट का मतलब ये वाला पार्ट हो गया प्रिंट, और ये भी प्रिंट है, तो रूट भी प्रिंट है, इसका लेफ्ट भी प्रिंट हो गया। अब ये राइट पे जाएगा, यहां जिस नोड पे आएगा फिर इसको प्रिंट करेगा, फिर इसका लेफ्ट पे जाएगा, हर बार ये लेफ्ट रूट करता रहेगा। तो ये बी पे, डी के बाद ये चला जाएगा बी पे, बी के बाद चला जाएगा ई पे, ई के बाद चला जाएगा एफ, एफ के बाद चला जाएगा जी। रूट लेफ्ट राइट, प्रोग्रामिंग पार्ट स्लोली यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले इसको समझिए। रूट लेफ्ट राइट, रूट को किया फिर इसके लेफ्ट गया, ये अब रूट हो गया इसके लेफ्ट गया, ये अब रूट हो गया इसके लेफ्ट कुछ नहीं है, इसके राइट कुछ नहीं है, ठीक है। ऊपर गया, इसके लेफ्ट हो गया, तो खाली थे तो कोई बात नहीं, तो ये क्या करेगा, ये रूट लेफ्ट हो गया, इसके राइट चला गया, ये हो गया। फिर ये सारे हो गए, लेफ्ट वाले पार्ट हो गए तो इसके राइट चला गया। तो दिस एल्गोरिथम रिकर्सिवली विल वर्क इन दिस वे। एक एक करके हम प्रिंट करके इसको देख लेंगे कैसे हो रहा, तो समझ में आएगा। तो दिस इज प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, इस प्रोग्राम को अभी हम लिखेंगे, and then we'll see that what kind of output we are getting for this, and then one by one I will print so that you more understand printing part. Logically mathematically pen and paper you understand, पहले रूट को फिर लेफ्ट को। लेफ्ट का मतलब ये नहीं कि लेफ्ट से यहाँ राइट चले जाएंगे, नो, रूट लेफ्ट लेफ्ट जब तक एम्प्टी नहीं होता तब यहां से राइट शुरू होंगे, जब ये लेफ्ट फ्री हो गया तब इसके राइट में जाएंगे। So this philosophy is known as pre-order traversal. This algorithm is known as pre-order traversal. Any question if anyone have right, then otherwise I will go to the programming part. Anyone have any query?
बी, डी के राइट में बी कैसे हुआ, क्वेश्चन था। डी के राइट में नहीं हुआ, आर का सारा लेफ्ट एग्जॉस्ट हो गया, आर के राइट में जा रहे हैं आप। डी के बाद क्या खाली हो गया, तो रीडिंग तो करनी है ना। आर का लेफ्ट एग्जॉस्ट हो गया, रूट बड़े छोटा ट्री, बड़े ट्री में देखोगे तो ये हो गया लेफ्ट, उसके बाद ये राइट, इस वाले स्ट्रक्चर सब ट्री में आएगा। That way it works. Okay. Okay. More we will see the programming, and one more two question by hand. Then you एक और बाय हैंड क्वेश्चन कर लेते हैं, तब हम आते, रुक जाओ एक मिनट, एक वन एग्जांपल, देन आई विल गो प्रोग्रामिंग। इसका ट्रेवर्सल लिखना है सबको। चलिए इसका ट्रेवर्सल सभी लोग लिखो, बड़ा है कोई बात नहीं। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सभी लोग लिखो, 2 minutes टाइम, देन आई विल डिस्कस। You write pre-order traversal for this example. I'm waiting 2 minutes time with everyone. Okay, now I'm going to write 1 more minute. Others, those who are not able to write it,
So what in this what happened? The philosophy or concept you can say root and then left. रूट क्या है R हो गया, उसके लेफ्ट में क्या है A, देन जैसे ही हम यहां आए ये रूट हो गया. नाउ ट्रीट दिस वन एज अ रूट. ऐसा नहीं है कि रूट लेफ्ट राइट मींस R के बाद A के बाद B. यहां से स्टार्ट किया, इसके लेफ्ट गए तो ये दिस विल बी ट्रीटेड एज अ रूट. इसको प्रिंट किया एज अ रूट. वी आर प्रिंटिंग एज अ रूट. आप इफ यू सी द प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, जब वो रूट हो रहा तब प्रिंट हो रहा. ये रूट था पहले, अब यहाँ लेफ्ट में गए ये रूट हो गया और इसको प्रिंट कर रहे हैं. अब ये रूट हो गया तो फिर से इसके लेफ्ट जाएंगे जी पे, जी बिकम्स रूट, जी को प्रिंट किया. जी के बाद फिर से इसके लेफ्ट में एच, तो सारा लेफ्ट 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 लेफ्ट. अब ये इसके बाद लेफ्ट और कुछ है नहीं, इसके लेफ्ट राइट. तो जी के बाद इसको एज ए रूट प्रिंट किया. ये भी जब हो गया तो रूट यहां तक देखिए, रूट का ये इसके लेफ्ट का ये इसके राइट का, तो इस वाले ब्लॉक में आई. ये जब हो गया तो अब कुछ नहीं बना, ए प्रिंट है, ए के राइट में भी कुछ नहीं है, तो ये वाला पार्ट आर प्रिंट ही हो चुका है, सारा प्रिंट हो गया. अब हम चले जाएंगे बी पे. ये प्रिंट होते ही बी, बी के लेफ्ट में जाएंगे सी, फिर सी के लेफ्ट में जाएंगे ई, फिर ई के लेफ्ट में जाएंगे एफ. सब प्रिंट हो गया, क्या बचा, फिर राइट में आएंगे जी. सो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ रूट लेफ्ट एंड राइट. आई होप एवरीवन इज गेटिंग. नहीं जी नहीं, डी है, सॉरी यहाँ डी है, लास्ट में डी लगा यहाँ. So this is the concept of pre-order traversal. Okay. I hope now it is clear and it is correct for everyone. Just check it. हमने लिखा है उस पे, सब लोग चेक कर लो सबका सही है कि नहीं. It is clear to everyone. Then we will go to programming part. Okay. So just 1 minute break. I'm coming and then we will start programming for this part. 1 minute be here. So just I'm
Okay. So at least. Okay, so just start programming for pre-order. I'm stopping sharing this and I'm sharing my collab file. Once visible, anyone just write, not everyone. So ऑलरेडी कोड भी हमने बताया था, उसी को लिख देते हैं बस. Just see. जो कोड अभी वहां लिखे थे ना, सेम उसी को लिखना है. So definition, pre-order travel. और इसमें पास कर दो रूट को. ठीक है, जो वहां लिखा था बोर्ड पे, सेम चीज. इफ root is none, return. और नहीं तो क्या किया था, पहले हम लोगों ने प्रिंट कर दिया था. याद होगा कि प्रोसेस मतलब प्रिंट रूट डॉट डेटा को प्रिंट करेंगे, फिर एक ही लाइन में करना है. तो जस्ट ये कॉमा लगा दो, या जो ये लगा दिया. ठीक है, इसके बाद हमने कहा था ये जब प्रिंट होगा उसके बाद प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल को फिर से कॉल कर लो इस फंक्शन को. और मैंने कहा रूट डॉट लेफ्ट को पास कर दो, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि इसको हम इसको ट्रेवर्स करते रहो. और फिर मैंने कहा था कि एक बार और कॉल करके रूट डॉट राइट. यहाँ कुछ प्रिंट नहीं कर रहे हैं, जस्ट प्रिंट क्या होगा, प्रिंट ये रूट, जब वो रूट बनेगा तो रूट का डेटा प्रिंट करेगा उसका. दिस ये प्री ऑर्डर केवल ट्रेवर्सल के लिए है, कि वहां पहुंचने के लिए. अगर हम इसको कॉल कर देते हैं तो टेस्ट करते हैं. अब प्री ऑर्डर जो फंक्शन आपने डिफाइन किया उसको कॉल करके और रूट को पास कर दो. रूट अभी पुराने प्रोग्राम में यहाँ बताया था ना, ये जो आपने अभी बाइनरी ट्री क्रिएट किया RABCDEFG, उसी को प्रिंट कर रहे हैं हम लोग. देखिए RACDBEFG. If you want, you can check it how it is working. ये कब फिनिश होगा, जब ये इसका लेफ्ट एम्प्टी हो जाएगा, तो ये वाला चेकिंग करने के बाद रिटर्न हो जाएगा. एंड दिस विल बी गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट. रूट का लेफ्ट. यहाँ पे हम एक प्रिंट लगाते हैं.
अब इसको रन करो, क्या होता है। नील से क्या हो रहा है देखो, RAC नील लगाया तो जैसे सी अपना ग्राफ खोल लो, सी पे गए उसका लेफ्ट नल हो गया है, तो क्या हो गया, सी पे जा चुके तो सी के राइट में जाए के गए, सी के राइट में गए फिर से नल हो गया। दिस विल टेल यू द सीक्वेंस कैसे कब कब राइट ले रहा है, जैसे ही राइट नल होगा फिर बाहर आ गया, बाहर होने के बाद फिर से लेफ्ट रूट, लेफ्ट राइट एक ट्रेवर्सल होता रहेगा। व्हाट यू डू टू अंडरस्टैंड किस सीक्वेंस में कब कहां जा रहा है, आप हर ब्रेक के बाद देखिए RAC लेफ्ट के बाद नील हो गया, एक बार नील आ गया, दोबारा उसका राइट भी नील था तो ये भी नील आ गया। अब ये डी कैसे आया, राइट नील हुआ तो फिर डी कैसे आया, सी का लेफ्ट सी का राइट, तो each sequence you print and see कि कोड कहां से कैसे जा रहा है। Here the correct answer will be nil, just the change of track. I said that to get it change of track part. तो रूट पे डी आ रहा है, ओके। Anyone have any question? If the nil part, if I will remove, RACDBEF. Any query? No one have any query? Okay. Those who have any confusion in the programming implementation, just give time and try to understand, then I will discuss. So this is pre-order. Once anyone you understand, then hardly 2-3 minutes or half an hour more needed for other in order and post order sequencing. So what you all do that, okay, those who are not getting, again, those who are not getting, no, Aman, I will share the code tomorrow, not today. You just give half an hour and try to understand in the programming how the codes are working from one point to other. Once you understand this point, other two easily you can understand. Okay, tomorrow I will share the code, not today. Purpose is paper and pen, understand, and then break करने के बाद कौन सा नोड कौन सा ट्रेवर्सल हो रहा, क्या मेमोरी में है. Okay, once you get it, those who are getting it fine, those who are not getting, just give half an hour time to understand the philosophy. Once anyone you understand, believe me, in order, post order, easily you can track and do that. That will not be problematic. Okay, so with this I will stop for today's session, and tomorrow I will meet. Okay.